ثانیہ زہرا قتل کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان محسن علی خان فیصلہ سنائیں گے۔ مرکزی ملزم مقتولہ کا شوہر پولیس کی زیر حراست۔ مقدمہ میں ساس اور دیور سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ کمشنر سرگودا جہاں زیب بان اور RPO شہزاد آصف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ضمنی الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ۔ PP 73 میں 163 پولنگ اسٹیشن میں سے 55 حساس قرار۔ PP 87 میاں والی میں 193 پولنگ اسٹیشن میں سے 62 حساس قرار۔ حساس مقامات پر CCTV نصب کیے جائیں گے۔ لودھرا میں محکمہ ایکسائز کی کارروائی۔ 155 گاڑیوں کی چیکنگ۔ غیر رجسٹرڈ 16 اور 19 ڈیفالٹر گاڑیاں پکڑ لیں۔ رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکسز قیمت میں 4.5 لاکھ روپے ریکوری۔ کہا اوپن لیٹر پر چلنے والی اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کو کوئی رعایت نہیں۔ DG خان کے ٹرانسپورٹرز بھی پیچھے نہ رہے۔ ملتان جانے والی لوکل بسز نے کرایہ 280 سے بڑھا کر 320 روپے کر دیا۔ لیا جانے والے مسافروں سے 500 روپے لیے جا رہے ہیں۔ کرایوں میں اضافے پر مسافر پریشان، نوٹس لینے کی اپیل۔ ڈیزل مہنگا، گڈز ٹرانسپورٹرز معاشی بدحالی کا شکار۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹر یزمان بابر خان کہتے ہیں متعدد گاڑیاں اڈوں پر ہی کھڑی رہتی ہیں۔ ڈرائیور کا روزگار نہیں ہوگا تو ہیلپر بھی پریشان ہوں گے۔ صادق آباد کے علاقہ احمد پور لمحہ میں تجاوزات مافیا بے لگام۔ ہسپتال چوک، ٹرانسپورٹ اڈہ، وحید چوک میں تجاوزات کی بھرمار۔ ٹریفک روانی بری طرح متاثر، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ شہری سراپا احتجاج، مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ملتان کے نواحی علاقہ بستی ملوک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ پیرا فورس ضلع کونسل کی مشترکہ کارروائیاں۔ پلدوا، ترگر سمیت مختلف مقامات پر تجاوزات کا صفایا۔ بازاروں، لنک روڈز کو بھی تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ جلال پور پھروالا۔ M5 کی بحالی کے امور کا جائزہ۔ مرمتی کاموں کے معیار بر وقت تکمیل کی ہدایات۔ 30 نومبر تک موٹر وے کو بحال کرنے کا حکم۔ خاکی وردی والا آیا، پیاروں کا خط لایا۔ پاکستان پوسٹ کسی دور میں بااعتماد روابط کی پہچان تھا۔ دور جدید میں ایک دوسرے کو خط لکھنے کا رواج ختم۔ چشتیہ میں ڈاک خانے کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا۔ عمارت خستہ حال، آمدن کم، اخراجات زیادہ۔ میپکو کی مبینہ غفلت بڑے سانحے کا پیش خانہ۔ مبارک پور میں خراب ٹرانسفارمر سڑک کے درمیان رکھ دیا گیا۔ راستہ تنگ ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ ریلوے روڈ پر رمزی چوک میں ٹرانسفارمر رکھا گیا ہے۔ ہارون آباد میں ہاکی کے کھلاڑی مشکلات کا شکار۔ میدان کی عدم دستیابی پر کھلاڑی گڑھوں والے میدان میں کھیلنے پر مجبور۔ گرنے کے باعث بہت سے کھلاڑیوں کو انجری ہو جاتی ہے۔ کھلاڑیوں نے سہولیات فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت لودھرا میں پرانا میونسپل اسٹیڈیم بھی خستہ حال۔ میلسی کے شہری سستی تفریح سے محروم۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ریلوے پارک مکمل ہونے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ مین گیٹ پر تالا، پارک کے اندر بڑے بڑے جنگلی پودے اگ گئے۔ پرنڈا محمد پناہ میں اسموگ کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے کچرے کو آگ لگا دی۔ دھواں پھیل گیا، سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ علی پور میں خاتون ٹیچر سے مبینہ زیادتی کا کیس نیا رخ اختیار کر گیا۔ متاثرہ ٹیچر کے بھائی کو نامعلوم نمبر سے دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ کالر کی خود کو FIA آفیسر ظاہر کر کے مقدمہ واپس لینے کی دھمکیاں۔ متاثرہ ٹیچر کے بھائی کی مدعیت میں نیا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق اسکول سیل اور تحقیقات جاری ہیں۔ ملتان پولیس کی کارروائیاں،
कैंट डिवीजन पुलिस ने 88 डकैत गिरफ्तार कर लिए। 10 गाड़ियां, 139 मोटरसाइकिल, 36 मोबाइल्स और 33,42,000 रुपए बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला अस्लहा भी बरामद। सीपीओ की मीडिया से गुफ्तगू। लिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार। 50 लाख रुपए का माले मसरूका बरामद। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में। मुल्जिमों ने इलेक्ट्रिक स्टोर से 50 लाख रुपए का सामान चोरी किया था। दुनियापुर में केहरोड पक्का रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। टायर फटने के बाद तेज रफ्तार कार रिक्शे से टकरा गई। रिक्शा ड्राइवर की दोनों टांगे टूट गई। कार सवार मर्द और खातून भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नवाबों के शहर बहावलपुर में डेंगू के वार बदस्तूर जारी। मकामी केसेस में इजाफा। बलोच और इस्लामी कॉलोनी से डेंगू के 2 मरीज सामने आ गए। विक्टोरिया अस्पताल में एक ट्रैवल हिस्ट्री का केस भी रिपोर्ट। खसरा और रुबेला से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा रोज। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का फील्ड का दौरा। टीमों की कारकर्दगी का जायजा। घर घर जाकर वैक्सीनेशन बारे दरियाफ्त किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुभान जिया की ब्रीफिंग। खानेवाल में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए कौमी मुहिम जारी। टीम्स घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ। 5,86,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। हुकाम की वालिदैन से ताउन करने की अपील। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम इकदाम। 8 अरब रुपए की लागत से बहावलपुर रहीमजर खान में 2 बंद यूनिट बनाने का फैसला। निश्तर बंद यूनिट पर बोझ कम होगा। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अमानुल्लाह की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके लिए फंड्स रखे थे और विद इन 4 मंथ्स इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑलमोस्ट हो चुकी है। पीएनडी ने इसको ओके कर दिया है, तो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में, थोड़े अरसे में शुरू हो जाएगा। मुसलसल इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता। 24 कैरात 4,32,000, 22 कैरात 3,96,000 रुपए में तोला फरोख्त। 24 कैरात की फी ग्राम कीमत 37,000 रुपए हो गई। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। चीनी 185 से 190 रुपए तक फरोख्त, जबकि सरकारी रेट 173 रुपए मुकर्रर। शहरी 12 से 17 रुपए फी किलो चीनी महंगी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान में यूनेस्को चेयर होल्डर्स कोऑर्डिनेशन मीटिंग। वाइस चांसलर नवाज शरीफ जरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली की रोही से गुफ्तगू। कहा, यूनेस्को चेयर्स मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 8 यूनेस्को चेयर्स कायम हैं। कपास की पैदावार 48,56,505 घंटे रिकॉर्ड। टेक्सटाइल मिल्स को 39,91,643 घंटों की तरसील। 6,98,262 घंटे स्टॉक में पड़ी हैं। कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मैनुअल टैक्स फाइलर्स के लिए गोशवारे जमा कराने का मामला। आखिरी तारीख 30 नवंबर। मुल्तान में अभी तक कोई रिटर्न जमा नहीं हुई। एफबीआर के मुताबिक जो लोग वकील नहीं करते वो हॉट कॉपी पर गोशवारे जमा कराते हैं। डीजी खान में स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पसीर। क्रिकेट और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के सख्त मुकाबले। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी और एमपीए हनीफ पताफी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पेशल एजुकेशन इदारों में 19 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। मेहमानों और मुंतजबीन को यादगारी शील्ड्स पेश। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान की जानिब से रैशनलाइजेशन का तीसरा मरहला शुरू। 3500 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के तबादले होंगे। 25 नवंबर तक तमाम एईओज को डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत। जनूबी पंजाब के लिए बड़ा एजाज। समीना बशीर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की टीई फेलोशिप हासिल कर। समीना बशीर ये एजाज हासिल करने वाली जिला बिहाड़ी की पहली मुअल्लिमा है।
FTAA फेलोशिप के तहत आलमी माहिरीन से ट्रेनिंग और जदीद तदरीसी तरीकों का इल्म हासिल होगा। दहलीज पर सहूलियात की फ्राहमी पुलिस का मिशन। मुबारकपुर में मोबाइल पुलिस स्टेशन लाइसेंसिंग वैन का आगाज। शनाख्ती तस्दीक, करेक्टर सर्टिफिकेट और लाइसेंस की सहूलत दस्तयाब। शहरियों ने इकदाम को खूब सराहा। शालीमार एक्सप्रेस प्राइवेट हो गई, मुल्तान में इफ्तिताह। AA इंटरप्राइजेस ने ट्रेन ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। CPOPS सेफ्टी रेलवे हनीफ गुल और चीफ एग्जीक्यूटिव ने इफ्तिताह किया। ट्रेन लाहौर और कराची के दरमियान चल रही है। प्राइवेट ऑपरेशन के बाद शालीमार एक्सप्रेस में नई सहूलियत शामिल। रेलवेज में सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए, ये हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी भी है। हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर के इस विजन की रोशनी में उन्होंने ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन और अपग्रेडेशन का सिलसिला किया हुआ है। तो ये शालीमार एक्सप्रेस उसी की एक जो है ना वो कड़ी है और एक नया तजर्बा है। किसी भी इदारे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का तरीकाकार। मुहतसिब पंजाब के ज़ेर तमाम रही इरफान खान में आगाही सेमिनार। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा तलबा की शिरकत। जिला एडवाइजर अकबर अली भट्टी का लेक्चर। बहावलपुर में 3 यूनिवर्सिटीज के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस। दूसरे रोज ख्वातीन यूनिवर्सिटी में सनतकारों के साथ एक्सपो। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया का कहना था इंडस्ट्रियल एक्सपो का क़याम सबकी जरूरत है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमयार खान में नुमाइश। टेक्सटाइल फाइन आर्ट्स के तलबा ने फाइनल प्रोजेक्ट्स पेश किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कैनवस पर फैले रंगों के हसीन इम्तजाज से खुशनुमा हिस्सा। रैंप पर जलवे बखेरती दुल्हने मरकज़े निगाह। शौक चंचल चमचमाते लबास नाज़ो नरखे से कैट वॉक। मुल्तान में निजी कंपनी के ज़ेरे तमाम अरूसी मलबूसात की नुमाइश। मौसम सरमा के मलबूसात ज़ेबेतर फैशन के शौकीन अफराद की भरपूर शिरकत। रहीमयार खान में तहसील सतह पर गर्ल्स स्कूल के दरमियान मुकाबले। दौड़, बैडमिंटन और टेबल टेनिस समेत दीगर खेलों का मैदान सजा। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा अरूज पर। शुरका बेहतरीन मुकाबलों से लुत्फानंदोज। शुगर खामोश कातिल जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में शुगर से आगाही का हफ्ता। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के ज़ेरे तमाम बहावल विक्टोरिया अस्पताल में वॉक। MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फखराबाद शाह और दीगर की शिरकत। हाथ की सफाई से खूबसूरत डिजाइन तैयार। मुल्तान के सरसाला हकनवाज उकेरा साजी के फन से वाबस्ता। हकनवाज पेपर, प्लास्टिक, लेदर और लकड़ी पर डिजाइन तैयार करते हैं। हकनवाज का कहना है पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऑर्डर्स मिलते हैं। लंडा बाजार महंगाई के इस दौर में उम्मीद की वाहिद किरण। गरीब सर्दी में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करते हैं। भक्कर के लंडा बाजार में भी कीमतें सर चढ़कर बोलने लगी। मंगला मंठार में लंडा बाजार तो सज गया मगर खरीदार न होने के बराबर। सर्दी से बचने के लिए हर शख्स को गर्म कपड़ों की जरूरत। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने खैर का सफर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक मुफ्त गर्म कपड़े दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान, लौधरा और खानेवाल की शिरकत। गुरेवाला में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक की ज़ियारत। उर्दू तर्जुमा के साथ कुरान मजीद की 2 रोज़ा ज़ियारत। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल ने इफ्तिताह किया। तलबा, वालिदैन, शहरियों की कसीर तादाद में आमद। हैप्पी बर्थडे सादिकाबाद। शहर 90 साल से आबाद। सादिकाबाद दुनिया का तीसरा, पाकिस्तान का पहला शहर जिसकी सालगिरह मनाई जाती है। 18 नवंबर 1935 को शहर की बुनियाद नवाब सर मोहम्मद सादिक अब्बासी ने रखी। इंतजामिया की तरफ से चिल्ड्रन पार्क में सालगिरह मनाने की तैयारी।
اور گلوکار زہیب حسن 59 برس کے ہو گئے۔ زہیب حسن نے اپنی بہن نازیہ حسن کے ساتھ مل کر آواز کا جادو جگایا اور کئی مشہور گانے گائے۔